آپ کو بتائیں محکمہ اسپیشلائزڈ فیصل آباد کا ایمرجنسی وارڈ کی طرز پر شعبہ بیرونی مریضہ میں بھی 100% ادویات کی مفت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت ڈاکٹروں کی جانب سے پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں کی ادویات تجویز کرنے پر پابندی عائد خلاف ورزی پر محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ فیصل آباد نے ایمرجنسی وارڈ کی طرز پر شعبہ بیرونی مریضہ میں بھی 100% ادویات کی مفت فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ڈاکٹروں کی جانب سے پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں کی ادویات تجویز کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے ٹیچنگ ہسپتالوں کے شعبہ بیرونی مریضہ میں 99 اقسام کی ادویات ڈاکٹروں کی مشاورت کے بعد فراہم کر رہے ہیں اور اس پر 1 جولائی سے عمل درآمد ہوگا۔ جو گورنمنٹ نے ہے انہوں نے اس کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے کہ تمام میڈیسنز جو ہیں وہ فری فراہم کی جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی 1 جولائی سے الائٹ ہاسپٹل اور باقی ہمارے دونوں ہاسپٹلز کے اندر آؤٹ ڈور میں مریضوں کو فری تمام میڈیسن دی جائیں گی۔ پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں کی ادویات تجویز کرنے پر پابندی ہوگی جبکہ ادویات تجویز کرنے والے ڈاکٹروں کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ اور یہ ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہے۔ اس سے پہلے ایمرجنسی میں اور آپریشن تھیٹرز میں ہم میڈیسنز فراہم کر رہے تھے مریضوں کو فری آف کاسٹ۔ اب انشاءاللہ تعالی آؤٹ ڈور میں بھی تمام امراض کی میڈیسن جو ہیں وہ فری دی جائیں گی پیشنٹس کو۔ پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کے مطابق 99 اقسام کی ادویات تمام شعبہ امراض کے مرض سے متعلق ہوں گی۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ اب خبر شامل کریں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ فیصل آباد ڈویژن میں گرمی کی شدید لہر، بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ مسلط۔ ڈویژن بھر میں شہری علاقوں میں 8 تو دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ عوام گرمی سے بے حال ہو گئے۔ فیصل آباد کے شہری گرمی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کے عذاب میں بھی مبتلا۔ شہری علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹے جبکہ دیہاتی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لے لیا۔ حکومت کو چاہیے بجلی پوری کرے، کوئی چیز کا نام و نشان نہیں ہے، ختم ہی ہو جا رہی ہے، دن بدن بجلی بھی کم ہو جا رہی ہے۔ جنگ میں لوڈ شیڈنگ عوام کے لیے وبال جان بن گئی۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پر 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری گرمی سے نڈال ہیں جبکہ تاجر برادری بھی صورتحال پر پریشانی کا شکار ہے۔ تو لوڈ شیڈنگ جو ہے اس سے کاروباری طبقہ جو ہے بہت متاثر ہو رہا ہے۔ دکاندار دکانوں میں نہیں بیٹھ سکتے، گاہک جو آتا ہے آ بھی جائے تو وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ دکان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ پرائم منسٹر سے اپیل ہے کہ خدا رہا ہم تاجر تو پہلے پیچھے ہوئے ہیں، برے حالات ہیں، آپ ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں، چلیں ریٹ بڑھائیں تو کم از کم بجلی کو تو پورا کریں نا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ جہاں لوڈ شیڈنگ کے باعث گھریلو امور متاثر ہو رہے ہیں وہیں کاروبار بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں۔ فیسکو ہوش کے ناخن لے۔ ایک بار ہم نے حالات ٹھیک ہوتے ہوئے دیکھ لیے، لوڈ شیڈنگ کی کمی کافی آئی تھی، اب اچانک اتنی لوڈ شیڈنگ ہونا قابل تشویش ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے اور اس طرح توجہ دے، اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ، اوپر سے اتنی زیادہ گرمی اور اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ۔ شہریوں اور تاجروں نے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری فورس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فلور ملز مالکان کے خلاف ضلعی انتظامیہ فیصل آباد کی کارروائیاں۔ فلور ملز ایسوسی ایشن فیصل آباد کا کل سے احتجاجاً ملیں بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن میاں شفیق انجم کی سٹی 41 سے گفتگو، کہا پاکستان کا آئین ہر ٹیکس دینے والے کو آزادانہ کاروبار کی اجازت دیتا ہے، یہاں سب کام آئین سے ماورا ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری فوڈ، چیف سیکرٹری اور ضلعی انتظامیہ فیصل آباد کی بدماشی چل رہی ہے۔ انتظامیہ صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے فلور ملز مالکان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ موجودہ حالات میں فلور ملز چلائے رکھنا ممکن نہیں، ہم فیصل آباد کی تمام فلور ملز کو آج ہی بند کر رہے ہیں۔ کل پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن کا اہم اجلاس ہے، کل پنجاب بھر کی فلور ملز بند کرنے کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ آج جو ہمارے ساتھ ضلعی انتظامیہ فیصل آباد نے زیادتی کی ہے، ہمارے ایک معزز ممبر ایکس چیئرمین پنجاب میاں انجم اسحاق کو ان کی مل سے گرفتار کیا ہے اور ان کی مل کو سیل کیا ہے کہ آپ یہ آٹا ٹرک پہ لوڈ کر کے کیوں بھجوا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کا آئین ہر بزنس مین کو جو ٹیکس گزار ہے پاکستان پورے میں آزادانہ بزنس کی اجازت دیتا ہے اور یہاں سارے کام آئین سے ماورا ہو رہے ہیں اور سیکٹری فوڈ، چیف سیکٹری اور ضلع انتظامیہ فیصل آباد کی بدماشی چل رہی ہے۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم فلور مل کا بزنس کر سکیں، اس لیے تمام جو مل جو اونر ہیں فیصل آباد کے، ہم نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم
कोई कोटा गंदम नहीं उठाएंगे, और जब कोटा गंदम नहीं उठाएंगे, गंदम नहीं होगी तो आटा कहाँ से देंगे, तो ना ही कोई आटे की सप्लाई देंगे। सुबह से हम फ्लोर मिल, तमाम फ्लोर मिल्स बंद कर रहे हैं, और सुबह हमारे पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन का भी इजलास है जिसमें पूरे पंजाब को बंद करने का भी फैसला हो जाएगा, ताकि ये ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब की इंतज़ामिया जो सिर्फ नंबरबाजी टांकने के लिए फ्लोर मिल को इन्होंने जुल्म सितम का निशाना बनाया हुआ है, हमें ये किसी सूरत में कबूल नहीं। हम इज़्ज़त के साथ कारोबार करते हैं, करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जलील किया जा रहा है। इन हालात में हमारे लिए काम करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम फैसलाबाद की फ्लोर मिल्स को आज ही बंद कर रहे हैं। सुबह से पूरे पंजाब की फ्लोर मिल्स इंशाल्लाह बंद होंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई हाई महंगाई, किसी काम ना आई गरीब की दुहाई। फैसलाबाद में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान बेकरी आइटम्स भी महंगी हो गई। घी, चीनी, दालें और चावल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने जहां अशिया खोरोनोश महंगी कर दी, वहां सफ़र भी जेब पर भारी हो गया। महंगाई के सैलाब ने कितना असर किया, ये जानते हैं। तेल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने महंगाई के एक नए बाब का आगाज कर दिया है। चीनी 85 रुपए से बढ़कर 100 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल की कीमत भी 400 रुपए से बढ़कर 550 रुपए किलो तक पहुंच गई है। दालों की कीमतों में भी तकरीबन 10% का इजाफा दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो चावल है उसकी कीमत भी 2 हफ्ते पहले 175 रुपए थी, आज 235 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। मार्केट में महंगाई का एक तूफान दिखाई दे रहा है। सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि दिन ब दिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जो ग्रोसरी हम 15,000 में करते थे, वही ग्रोसरी अब 18 से 20,000 में होगी और इससे भी अप हो रही है। बेकरी आइटम्स भी महंगी हुई हैं। डबल रोटी की कीमत तो कमोबेश वही है, लेकिन केक रस की कीमत जो है ये 500 रुपए किलो से बढ़कर तकरीबन 600 रुपए किलो हो चुकी है। रूटीन का बिस्किट 400 रुपए किलो से बढ़कर 500 रुपए किलो नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर दीगर अशिया जिसमें मामूल की इस्तेमाल में आने वाला के रस है, उसकी कीमतों में भी इजाफा नजर आ रहा है, जिस वजह से सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। पहले 400 में मिल रहा था ऑयल और अब उसकी कीमत 500 प्लस हो गई है। इसी तरह बेकरी की आइटम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इस्लामाबाद का सफ़र 300 रुपये महंगा होकर 1200 रुपये तक पहुंचा। लाहौर जाना तकरीबन 200 रुपये महंगा होकर 550 हुआ। मुल्तान का किराया भी 550 से 750 रुपये तक चला गया। झंग और टोबा टेक्सिंग का किराया भी तकरीबन 30% बढ़ा, जिस पर शहरी क्या कहते हैं जानिएगा। महंगाई बेटा इतनी हो गया कि इंतहाई ज़्यादा, गरीब आदमी जीना बहुत मुश्किल हो गया। सवारी लभदी कोई नहीं मेरी गल सुन। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि इंतहाई ज़्यादा महंगा हो गया मेरी गल। जरूरत इस अमर की है कि अशिया खोरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को भी काबू किया जाए, ताकि आम आदमी की रोटी रोजी चलती रहे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत शहरियों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए कोशां। झंग में शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स फाल कर दिए। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स शहर की मरकजी जगहों पर शहरियों को सस्ता आटा फराहम करेंगे। सस्ता आटा अब घर की दहलीज पर मिलेगा। झंग में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने अवाम को रिलीफ फराहम करने की ठान ली। शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी के लिए मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स फाल कर दिए गए। शहरी इलाकों में नामजद पॉइंट्स पर मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी मुमकिन करेंगे। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुताबिक मोबाइल स्टोर्स का फैसला शहरियों को सफरी दुश्वारियों के बाइस किया गया है। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स एसोसिएशन के मरकजी नायब सदर इफ्तिखार मेहदी ने इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि शहरियों को 10 किलो का थैला 400 जबकि 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में फराहम किया जाएगा। आम मार्केट में आटा बहुत महंगा है, जिससे बहुत दुश्वारी हो रही थी। इस इकदाम से शहरियों को इसका फ़ायदा होगा। 400 रुपए का बैग जो है वो 10 किलो का है और 800 रुपए का बैग जो है वो 20 किलो का। शहरियों की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के फैसले को खूब सराहा गया, जबकि शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत दीगर अशिया की कीमतों पर भी मजीद रिलीफ फराहम करे, ताकि गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी बाइज़्ज़त तरीके से मैसर हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, फैसलाबाद की वकला बरादरी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। वकला आज एहतजाजन अदालतों में पेश न हुए। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद की बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई के खिलाफ निकलेंगे, हर सतह पर आवाज बुलंद करेंगे। सदर बार बिलाल अशरफ बसरा, साबिक सदर चैम्बर ज़िया आलमदार, नसीर वाहरा, जिलाई अमीर जमात इस्लामी महबूब जमान भट्ट समेत दीगर की शिरकत। भारतीय तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारतीय सफीर को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया।
की पेट्रोल और अशियाई खुरनोश की कीमतों में रोज बरोज इजाफे के खिलाफ क्यानी हाल डिस्ट्रिक्ट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर डिस्ट्रिक्ट बार बिलाल अशरफ बसरा, सेक्रेटरी यासिर हयात चट्ठा, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिया अलमदार, राव सिकंदर आजम, ताजर रहनुमा नसीर वोहरा और जिले अमीर जमात इस्लामी महबूब जमा भट्ट ने शिरकत की। इस मौके पर बिलाल अशरफ बसरा का कहना था, हुकूमत आवाम को रिलीफ दे, नहीं तो सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो हम ये करारदाद मंजूर करते हैं। हमारी फिर चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि इनसे हमारी जान छुड़ाएं। खुदा के लिए हम पे रहम करें, अल्लाह आप पे रहम करेगा। आप मतलब ये कोई जनाजा नहीं है जिस कुर्सी पे आप बैठ के इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें। शुरका ने कहा, अवाम को महंगाई से निकालने के लिए इकदाम किए जाए। हुक्मरानों ने होश के नाखून न लिए तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। आप फौरी तौर पर, हमारा अवाम का और आज के इस हाउस का भी ये मुतालबा है कि आप फौरी तौर पर तमाम जितने भी मुक्तदर लोग हैं, सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर से लेकर हर सतह के, उनका पेट्रोल जो फ्री होता है उसको खत्म किया जाए। उनके दीगर जितने भी आपने उनको फैसिलिटीज दी हुई हैं वो सारी की सारी खत्म की जाएं और वो अल्ले तलल्ले खत्म किए जाएं। और उनके नतीजे में मैं समझता हूं कि अरबों डॉलर की बचत हो सकती है। वकला की जानिब से हुकूमत से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा किया गया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का मुसवदा तैयार। महकमा बल्दियात ने एक्ट का मुसवदा हुकूमत को पेश कर दिया। नए बल्दियाती एक्ट के तहत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस की तादाद 11 की बजाय 9 रखने का फैसला किया गया है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में बल्दियाती निज़ाम 2021 में नेबरहुड और विलेज कौंसिल की शामिल की गई शिक भी खत्म कर दी गई। नए बल्दियाती निज़ाम में फैसलाबाद समेत 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होंगे। नए बल्दियाती एक्ट के मसूदे के मुताबिक टाउन काउंसिल की तादाद 27 होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तादाद 16 की बजाय 17 होगी और म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 234 होगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में म्यूनिसिपल कमेटियों की तादाद 182 थी। नए एक्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तादाद 35 ही रखी गई है। तहसील काउंसिल की तादाद 137 रखी गई है। नए एक्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर बल्दियाती इदारों की तादाद 459 होगी। यूनियन काउंसिल की तादाद 2013 के बल्दियाती एक्ट के मुताबिक 4015 ही होगी। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 पंजाब असेंबली से मजीद तौसी न मिलने पर 8 जून को अज खुद खत्म हो जाएगा। वासा डोमेस्टिक टैरिफ पर नजरसानी करने में नाकाम, टैरिफ रिवाइज किया जाएगा, इस उम्मीद पर जायका ने 20 साला मास्टर प्लानिंग की। पंजाब सरकार ने टैरिफ में तब्दीली की समरी अपनी ही जेब में डुबा दी। टैरिफ बढ़ाकर वासा के खसारे को कम करने की जायका की तजावीज भी नजरअंदाज। महाना खसारा करोड़ों रुपए, वासा के मास्टर प्लान का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। फैसलाबाद में पानी और सीवरेज की 20 साला जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए जापानी कंपनी जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने मास्टर प्लान बनाया और उसके इतलाक के लिए वासा टैरिफ में इजाफे की तजवीज थी। 3 मरला के बिल 200 रुपए में 5 साल के लिए सालाना 5% इजाफा तजवीज किया गया। 5 मरला कैटेगरी के महाना बिल 450 रुपए में 5 साल के लिए 10% सालाना इजाफे की तजवीज दी। 10 मरला घर के बिल 700 में अगले 5 साल में सालाना 25% इजाफे की तजवीज दी, मगर सरकार ने समरी जेब में रख ली, जिससे वासा को महाना 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खसारे का सामना है। वासा का टैरिफ रिवाइज न होने से पानी और सीवरेज के बिलों में मुतनासिब इजाफा नहीं हो सका, जिससे जायका के साथ किया गया वादा वफा नहीं हुआ और मास्टर प्लान पर अमल दरामद भी मुश्किल हो गया। टैरिफ में इजाफे पर जायका की तजावीज भी नजरअंदाज करने से आलमी सतह पर वासा का वकार भी मजरू होने के साथ मास्टर प्लानिंग पर अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा, जबकि वासा खुद कफील नहीं हो पाएगा। वासा को मसाइल से निकालने के लिए टैरिफ में तब्दीली की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, जनरल अस्पताल फैसलाबाद 224 रेबे की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने मंसूबे से सेंट्रल एयर कंडीशन मंसूबा खत्म कर दिया। एयर कंडीशन शामिल करके दोबारा PC1 भिजवाने की हिदायत कर दी। लोड शेडिंग के सबब मरीजों की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत पंजाब की जानिब से 250 बेड्स पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल 224 रेबे तामीर किया जा रहा है। ताहम महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अस्पताल के मंसूबे से सेंट्रल एयर कंडीशन मंसूबा खत्म कर दिया और ऐसे में एयर कंडीशन शामिल करके दोबारा PC1 भिजवाने की हिदायत कर दी। मरीजों ने मुतालबा किया हुकूमत अस्पताल को जल्द फाल बनाए। अस्पताल में कभी बिजली नहीं होती तो कभी अद्वियात नायाब होती हैं, जिसके बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बड़ी मजबूरी आ, बड़ी मुश्किल बनी है, बड़ी आवाजारी च असीं बिमार मरीज आ, बच्ची दा जरकान तेज होया
ਉਧਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? हाँ जी, गर्मी की वजह से परेशान हैं बस, इधर सब बच्चे भी रो रहे हैं गर्मी की वजह से बस। हाँ जी, चेकअप बुखार है इसको, उसकी मेडिसिन लेने आए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल डॉक्टर जाफर हुसैन का कहना है अस्पताल तामीर के मराहिल में है। एयर कंडीशंस की डिमांड से मुतालिक हुकूमत को आगाह कर दिया है। जनरेटर पर 1 घंटे में तकरीबन 3000 रुपए का डीजल खर्च होता है। हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के थ्रू और सीओ साहब के थ्रू एक लेटर मसूल हुआ है जिसमें एक HVAC सिस्टम को एक प्लान है कि यहाँ से अबॉलिश करके ख़त्म करके एयर कंडीशन सिस्टम शुरू कर दिया जाए। तो HVAC सिस्टम बेसिकली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसके हवाले से हमने इस कमरों के हिसाब से अपने एसीज की डिमांड सबमिट करवा दी है। जनरल अस्पताल में सिर्फ शोबा बैरूनी मरीजा को ही इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, हाजी कैंप फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग, आज़मीन हज और कैंप का अमला गर्मी में ख्वार होने लगा। कैंप में मौजूद कोरोना वैक्सीन भी खराब होने का खदशा, कैंप में रखी गई वैक्सीन के ज़ाया होने का भी खदशा पैदा हो गया। वजारत मजहबी अमूर डायरेक्टोरेट हज के चीफ फैसको को लिखे मरासले किसी काम न आए। हाजी कैंप फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग जारी, आज़मीन हज और कैंप का अमला गर्मी में खवार होने लगा। आज़मीन हज का कहना है कि शदीद गर्मी में खवार हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैसको को चाहिए कि वो बिजली की जो है फराहमी करें यहाँ पे, ताकि ये वैक्सीन का भी जो है ज़ाया ना हो और हमें भी हमारा भी टाइम ना ज़ाया हो, और जैसे कि गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा है। लोड शेडिंग के हवाले से हेल्थ स्टाफ का कहना है कि बिजली बंदिश के बायस कैंप में रखी वैक्सीन ज़ाया होने का खदशा है। लिहाजा फैसको हुकाम को चाहिए हाजी कैंप में बिजली बंद ना की जाए। उसका दर्जा हरारत हमने -2 से -8 तक रखना होता है, लेकिन जहाँ पे बिजली जो है वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो रही, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैक्सीन का कूल चेन मुतासर होने का खदशा है, ठीक है ना। और बिजली की बिला तातुल फराहमी यहाँ पे होनी चाहिए। आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी तरजीह बुनियादों पर होनी चाहिए। कैमरामैन अकील के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगे पेट्रोल के बायस धागे और दीगर खामाल की तरसीलात शदीद मुतासिर, सनतकार परेशानी का शिकार हो गए। कहते हैं ट्रांसपोर्ट करायों में 30 से 40% इजाफे ने पैदावारी लागत बढ़ा दी है। इजाफे को खरीदार तक मुंतकिल किया तो वो दीगर मंडियां तलाश करने लगेगा। महंगे पेट्रोल के बाईस फैक्ट्रियों में धागे और दीगर खाम माल की तरसीलात शदीद मुतासिर हो रही है, जिससे सनतकार परेशान हो गए। साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल्ला कादरी कहते हैं करायों में इजाफे से फैक्ट्री आने वाले खाम माल की पहुंच भी महंगी पड़ती है। यही नहीं, शिपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर्स के किराए भी बढ़े जा रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। जब ट्रांसपोर्ट की चीज़ें बढ़ती हैं तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। मतलब आपने बहुत सारी चीज़ें इनर फैक्ट्री आपने मूव करनी होती हैं, या आपने बहुत सारी चीज़ें बाहर से आउटसोर्स करनी होती हैं, चीज़ें इस तरह की। जब ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, इसी तरह आपने जब एक्सपोर्ट करना है तो फिर सबसे बड़ा उसमें जो कॉस्ट आती है, मतलब उसके अंदर फिर वो ट्रांसपोर्ट की आती है। अब्दुल्ला कादरी ने कहा कोरोना वबा के दौरान जिन ममालिक की तवज्जो बतौर खरीदार पाकिस्तान की तरफ मरकूज हुई, अब पैदावारी लागत बढ़ने के बायस इनकी तवज्जो हटने का भी खदशा है। जब वो कॉस्ट आपकी तकरीबन अंदाज़न 30 से 40%, जब 40% तक वो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो क्या वो इम्पैक्ट नहीं करेगा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली आपकी जब आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप किस तरह कम्पीट कर सकेंगे अपने कस्टमर। खित्ते में मुसाबकत रखने के लिए जरूरी है कि किरायों को ना बढ़ाया जाए ताकि कारोबार में गैर यकीनी सूरत हाल से बचा जा सके। कैमरामैन इरफान अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं फैसलाबाद के सनतकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। सेल्स टैक्स और PRA के साथ साबिका टेक्सटाइल पॉलिसी कीमत में 6 अरब रुपए के रिफंड्स भी सरकार के पास फंस कर रह गए। सनतकारों के 6 अरब रुपए सरकार के पास फंस गए। रिफंड्स की रकम साबका टेक्सटाइल पॉलिसी, मार्कअप सपोर्ट सर्विसेज और सिस्टम अपग्रेडेशन की मद में ज़ेरे इल्तवा है। रिफंड जारी न होने से टैक्स गुजारों को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के जनरल सेक्रेटरी अजीजुल्लाह गोहीर का कहना है कि ज़ेरे इल्तवा रिफंड्स वजारत कॉमर्स के जुमा है। वजारत कॉमर्स को इस हवाले से मुतअद्दिद शिकायत दर्ज करवाई गई है, मगर रिफंड्स की रकम जारी न हो सकी। टैक्स गुजारों का कहना था कि रिफंड्स की रकम न मिलने से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत रिफंड्स की अदायगी के लिए फौरी इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की शानदार कारकर्दगी। टैक्स वसूली में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 74% इजाफा रिकॉर्ड। अब तक टैक्स वसूली 56 अरब रुपए से जायद हो चुकी है। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में वसूलियां 33 अरब रुपए रही थीं। सिर्फ मई में टैक्स वसूली 5 अरब रुपए से जायद हुई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुल्की माशियत को मुस्तहकम करने के लिए कोशां। अदादोशुमार के मुताबिक टैक्स वसूली में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 74% इजाफा हुआ है। टैक्स वसूली के हवाले से एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस का कहना है कि रवा माली साल के दौरान टैक्स वसूली 56 अरब रुपए से जायद हो चुकी है। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में वसूलियाँ 33 अरब रुपए रही थी। इनकम टैक्स 33.3 बिलियन जबकि सेल्स टैक्स 10 अरब रुपए से जायद वसूल किया गया। जो लास्ट ईयर था, जो कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड था अप टू मई जो था, उसमें 32 बिलियन थी। तो ये 76% अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ है और ख़ासी अच्छी ग्रोथ है। इसी तरह अगर हम और इसमें एक फैक्टर जो बड़ा काबिल गौर है कि इसमें एफपीआर ने जो सेल्स टैक्स के रिफंड हैं वो भी ज़्यादा इशू किए हैं 18%। पिछले साल इसी पीरियड में जो सेल्स टैक्स का रिफंड इशू हुआ था वो 33 बिलियन था। एडिशनल कमिश्नर एफबीआर हेडक्वार्टर उमर यूनुस ने कहा कि मई में टैक्स वसूली 5 अरब रुपए से जायद हुई, जिसमें 3.3 अरब रुपए इनकम टैक्स और 2 अरब 20 करोड़ रुपए सेल टैक्स वसूल किया गया। आईपीआर काम के मुताबिक रवा माली साल के इख्तिताम से कबल ही मतलूबा अहदाफ मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में महंगाई के मारे शहरी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद रेलगाड़ी के सफर को तरजीह देने लगे। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ने लगा। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के किराए अदा करना बस से बाहर हो चुका, जबकि दूसरी तरफ रेलवे की आमदन में 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने सबकी चीखें निकलवा दी। टोबा टेक्सिंग के शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय ट्रेन के सफर को तरजीह देने लगे। शहरियों का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निस्बत ट्रेन का किराया कम है। पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं उनसे जो है वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किराए में भी इजाफा हुआ है। तो ट्रेन के ऊपर जो वो कह लें कि मिनिमम साइड पे किराए हैं। टोबा टेक्सिंग से फैसलाबाद का बजरिया बस किराया 400 रुपए, जबकि ट्रेन के जरिए 150 रुपए है। टोबा से लाहौर का बस के जरिए किराया 900 रुपए, जबकि ट्रेन का 500 रुपए वसूल किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में ट्रेन का सफर उनके लिए बेहतर है। शहरियों का कहना है कि ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है, जबकि शदीद रश के बायस ट्रेन का सफर भी मुश्किलात में इजाफा करता है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल करने की अपील की है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। आगे बढ़ें और आपको बताएं, रीजन फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल कम ना हो सके। 7.5 लाख की आबादी, तांदलियावाला के लिए कोई ट्रैफिक सेक्टर मौजूद नहीं। ट्राई सेंटर, लर्नर लाइसेंस ब्रांच और ना ही मेडिकल की सहूलत मुयसर है। तांदलियावाला के शहरियों को सहूलियात के लिए 60 किलोमीटर का सफर करना जरूरी हो गया। फैसलाबाद रीजन में ट्रैफिक मसाइल जूं के तूं। तहसील तांदलियावाला में ट्रैफिक पुलिस का कोई सेक्टर मौजूद नहीं। शहरी लाइसेंस के हसूल के लिए 60 किलोमीटर का सफर करने पर मजबूर है। और उस हवाले से ताकि लोगों को परेशानी ना हो, फिर हम उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं। हैवी ट्रैफिक है, जो भी ट्रैफिक, वो नेचर ऑफ प्रोजेक्ट के साथ मशरूत होता है कि भाई हमने कौन सी ट्रैफिक को वहाँ से डाइवर्ट करके किस रूट से निकालना है। पहली बार लर्नर लाइसेंस, फिर मेडिकल, फिर फाइल जमा करवाना और फिर टेस्ट देना तांदलिया वालों के रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गया। मामू कांजन में भी ट्रैफिक पुलिस नाम की कोई सहूलत मौजूद नहीं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें परसों हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो कल हमने ये, बल्कि परसों ही हमने सोशल मीडिया पे तो हमने प्रोपेगेट कर दिया था कि ये 5 पुली पे जो है ना वो 10 इंच पाइप जो है ना वो नहरी पानी का उन्होंने ले डाउन करना है। सीटीओ तनवीर अहमद मलिक का कहना था तांदलियावाला की 7.5 लाख से जायद आबादी के लिए आने वाले 15 रोज में लर्नर और ड्राइविंग टेस्ट की सहूलत मुहैया कर दी जाएगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेस्को का दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के हवाले से इकदाम। 10 साल से कम अरसा मुलाजमत वालों को लवाहिकीन को पूरी पेंशन मिलेगी। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला मुतलका अफसरान को हिदायत जारी कर दी। आपको बताते चलें, फेस्को का दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के हवाले से अहम इकदाम। 10 साल से कम अरसा मुलाजमत वालों के लवाहिकीन को पूरी पेंशन मिलेगी। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला मुतलका अफसरान को हिदायत जारी कर दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब की सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन जंग के 2 और फैसलाबाद का एक हल्का शामिल। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका। फैसलाबाद के हल्का PP 97 में 18 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए।
97 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में 18 उम्मीदवार मैदान में आ गए। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अजमल चीमा ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। साबिक तहसील नासिम चकझुमरा, चौधरी फवाद चीमा, चौधरी अली अफजल शाही, चौधरी जुनेद अफजल, साबिक MNA तारिक महमूद बाजवा भी सामने आ गए। चौधरी शेरफगंज चीमा, लुकमान चौधरी, साबिक MPA आजाद अली, सलीम जहांगीर चट्ठा, रिजवान लियाकत, नदीम शफी ने भी बतौर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अली अहमद गुराया, मोहम्मद आसिफ अजीज, वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर नवाज, राना फयाज अहमद, सनान जहांगीर और शोएब असलम भी दौड़ में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन हुक्म के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 जून तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 24 जून को जारी होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 17 जुलाई को होगी। PP 97 की नशिस्त चौधरी अजमल चीमा के D सीट होने पर खाली हुई थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में MPA मुआविया आजम और डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबा जाहिद सुहेल ने गोजरा में खाद और आटा पॉइंट्स का दौरा किया। जंग में MPA मुआविया आजम और डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सब्जी मंडी में बोली ज़राई अफसरान की निगरानी में करवाने का फैसला किया गया। इजलास में घी कंपनियों के नुमाइंदों ने ब्रीफिंग भी दी। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान ने कहा, तमाम होलसेल डीलर्स के स्टॉक को बाकायदगी से चेक किया जाएगा। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास नून लीग रहनुमाओं मियां अब्दुल मनान और शेख एजाज अहमद की सदारत में हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर साहबजादा मोहम्मद यूसुफ और उमर मकबूल भी शरीक हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आबिद हुसैन इकदाम पर ब्रीफिंग दी। शेख एजाज अहमद और मियां अब्दुल मनान ने मार्ट्स का दौरा भी किया। DC काउंटर पर 10% रियायत के इकदाम को सराहा। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने गोजरा में खाद और आटा पॉइंट्स का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने रेट्स और सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का कहना था कि किसानों को खाद की फराहमी हर सूरत मुमकिन बनाई जा रही है। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को किसी किस्म की ढील नहीं दी जाएगी। सीनियर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी की ज़ेर सदारत मुहर्रम और हराम के हवाले से इजलास, पुलिस अफसरान, मजालिस, जुलूसों के लाइसेंस दारान और मुंतज़मीन ने शिरकत की। जिले में अमन अमान की सूरत हाल मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। DPO का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में तमाम वसाइल बुरुएकार लाकर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। जिला भर में इमाम बारगाहों और दीगर मुकामात का सिक्योरिटी ऑडिट करवाया जा रहा है। दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने ताजरों के वफ्द से मुलाकात की। जिला सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी की क़यादत में अंजुमन ताजरान और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। मुलाकात में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। DPO ने कहा, लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए इकदामात अव्वली तरजीह है।